Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. Okay, now we'll start with the 7th class of your English reader book with the unit 1 and chapter 1. Before we started the chapter 1, we have to do some exercise of unit 1 with the intro, growing up. Here we start. Write the name of following Gyanpith award winners. Okay, what we have to write? We have to write about the ज्ञानपीठ अवार्ड विनर, जो भी हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं उनके बारे में हमें बताना है. फर्स्ट वन इज अमिताभ घोष. राइट इन योर कॉलम नंबर 1 अमिताभ घोष. इनको कौन सा मिला था? 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया था. ही इज आर इंडियन राइटर. Okay, second one is Krishna Sobhuti. Second one is Krishna Sobhuti. She is also Indian writer, Indian Hindi language and fiction writer. है ना, ये है fiction writer हमारी. And she is an essayist also. She writes many essays also. In 1950 she got an award. Okay, next one, third one is Padma Shri Pratibha. She is a novelist and a story writer. She is a novelist and a story writer, also an Indian. Okay, now move to the fourth one. Fourth one is our Amarkant. He is also an Indian writer of Hindi literature. Indian writer of Hindi literature. Okay, राइटर है ये. कौन है? इंडियन राइटर है हमारे. और क्या लिखते हैं ये? हिंदी लिटरेचर. Fifth one is Satyavrat Shastri. Satyavrat Shastri. He is also an Indian writer, Indian संस्कृत scholar. इनको स्कॉलरशिप किस में मिली है? संस्कृत में. तो he is संस्कृत scholar and writer. And writer. Last one is our famous Hindi poet Kedarnath. Okay, famous Hindi poet Kedarnath. Okay, so after this we will study about we'll read first chapter of your class 7th. Okay guys, so that's all for today. Bye bye. In your new class 7th English reader chapter 1st. So we'll start with the chapter 1st unit 1. The chapter name, the special prize. The special prize. Somebody will get the special prize in the story, of course, because the name of the title is a special prize. Okay, we will start. Read a story of a boy. We will here read a story of a boy, Tapan, whose deeds are always misunderstood and he is labeled as a naughty and bad boy. Tapan, जिसके कामों को क्या समझा जाता था? हमेशा गलत समझा जाता था. कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने चीज़ों को, लोगों को गलत समझ लेते हैं, अपने आसपास जो लोग होते हैं. ठीक है, और वो होते नहीं वैसे जैसा हम उन्हें समझ रहे होते हैं. सेम विद द तपन. He was a different kind of boy and everybody misunderstood him and he is labeled as a naughty and bad boy. कई बार क्या होता है, sometimes we label some person, like we label the children like he is very naughty, he is very bad, he is very awkward. हम कुछ भी उसके बारे में धारणा बना लेते हैं and we follow that.
we followed that perception always. We never try to get to know that actually he is that kind of person or not. Bus we perceived, we make a perception about the person. So here we did the same. Okay, now we will carry, we will move forward. What a naughty boy, कितने naughty boy हो तुम. He deserves to be thrashed. सब क्या कह रहे थे कि उसको तो थ्रैश कर देना चाहिए. थ्रैश मीन्स उसको, उसकी पिटाई होनी चाहिए, उसको मारा जाना चाहिए, उसको हिट करना चाहिए. टू हिट बैडली विद अ स्टिक, उसको एक स्टिक से पिटाई होनी चाहिए उसकी, वो इतना नॉटी है. आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड रिपोर्ट्स ऑफ हिज गेटिंग इनटू फाइट्स विद अदर बॉयज. मुझे भी बहुत रिपोर्ट्स मिली हैं. सेंड फॉर हिम, किसने कहा? हेडमास्टर. हेडमास्टर शॉटेड फॉर द चौकीदार, चौकीदार को बोला आप जाइए और उसे भेजिए. ठीक है, मुझे बहुत रिपोर्ट्स मिली हैं उस बच्चे के बारे में, वो बहुत शैतान है. ही रस्ड इन एंड आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, कि उसको ठीक है मैं जाता हूँ जल्दी से और मैं उसे भेजता हूँ. हरी एंड गेट तपन ऑफ क्लास 5th. कौन से क्लास में पढ़ता था वो? ही टॉट इन द क्लास 5th. द हेडमास्टर ऑर्डर्ड. Let me introduce the reader of the boy named Tapan. Who was the boy for which we are talking about? Tapan. His name is Tapan. He is the second son of Ratan. Somebody Ratan in the village. He is the second son of Ratan, and he was the clerk of Padmani village. He was the clerk of that village. His son name was Tapan. Although rather thin, he is strong and bright eyes. वो बहुत पतला था और पर उसकी जो आईज थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ब्राइट थी, बहुत प्यारी थी. ही इज क्वाइट गुड एट हिज स्टडीज बट बोथ एट होम एंड आउटसाइड देयर इज नो एंड टू हिज प्रैंक. वो बहुत अच्छा था स्टडीज में, बहुत अच्छा, घर पे भी और बाहर भी उसका बिहेवियर सही था, बट उसका प्रैंक्स का एंड नहीं था. मतलब वो जो प्रैंक्स करता था, जोक्स एंड ऑल, और जो वो मजाक करता था, जो वो कह सकते हैं हम नॉटीनेस करता था, नालायकपंती, तो उसका कोई अंत नहीं था. ही इज ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल, इसलिए वो हमेशा किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाता था. इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ही इज नेवर द फर्स्ट टू पिक अ क्वारल, बट दिस इज वेरी श्योर, ही वॉज नेवर द फर्स्ट वन. अगर somebody hits him then he will hit. अगर सामने से कोई उससे फाइट करता है तो ही वो फाइट करता था, अदरवाइज he never initiate a fight, never ever. But if anybody offends him, he never hesitate. It give as good as he gets. अगर कोई उसे परेशान करता था, ऑफेंड करता था, तो फिर वो कोई कसर नहीं छोड़ता था. He is the leader of his age group and is always ready to take up the cuddles on his behalf. वो लीडर था ग्रुप का और हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेने के लिए, मतलब वो तैयार रहता था. वेपन उसके हाथ में हमेशा, कटगल्स मतलब यू कैन से अ वेपन काइंड ऑफ, तो तैयार रहता था अपने हाथ में वेपन लेके. ही इज पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज कंपेनियंस. ही इज स्टडिंग एट जननपीठ हाई स्कूल एंड विच इज अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम अ विलेज. ठीक है, जो वो था वो एकदम पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर था और रिस्पेक्ट किया जाता था अपने कंपेनियंस के द्वारा, मतलब उसके जो साथी थे. ही इज स्टडिंग एंड जननपीठ, और वो कहाँ पढ़ता था? जननपीठ हाई स्कूल में, और वो उसके घर से कितना दूर था? 1.5 मील. ठीक है, 1.5 मील फ्रॉम हिज विलेज. उसके विलेज से 1.5 मील वो दूर था. ठीक है, ही इज द बॉय नेम विच इज तपन and he carrying the ox. He's I think pushing him or whatever. Now we will see ahead what he is actually doing with the ox. He had only been at Jananpeth a month and already there was a complaint against him. अभी सिर्फ उसे 1 महीना ही हुआ था और उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट आ चुकी थी. Haran, the shopkeeper of Padmani village, had complained to the headmaster. जो हैरन था, शॉपकीपर था वहां पे पद्मनी विलेज में, उसने क्या किया था? हेडमास्टर को कंप्लेंट किया था. क्या कंप्लेंट किया था? That Tapan and a number of other boys without provocation thrown stone at his shop. किसी भी बिना
किसी प्रॉब्लम के किसी उसने कुछ नहीं किया था, मतलब वो जो शॉपकीपर था, बट तपन और उसके जो साथी थे उन्होंने उस पर क्या किया था, प्रीवियस इवनिंग दे थ्रो द स्टोन्स एंड द शॉपकीपर was saying that तपन was a ring leader. तपन एक रिंग लीडर था उनमें, मतलब वो इन सबको लीड कर रहा था. तपन केम इन विद द चौकीदार एंड आफ्टर ग्लैंसिंग टाइमली एट द हेडमास्टर स्टूड विद हिज हेड लोअर्ड स्विंगिंग हिज केन. द हेडमास्टर डिमांडेड, "You are तपन, aren't you?" वो आया और अपने गर्दन झुका के वहां पर ऐसे करके खड़ा हो गया इन फ्रंट ऑफ हेडमास्टर. ओके, यस सर, तपन रिप्लाइड पोलाइटली. उन्होंने कहा, आप ही तपन हो? उन्होंने कहा यस. तपन ने बोला, यस आई एम तपन. डू यू नो दिस जेंटलमैन? द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग एट द शॉपकीपर. यस सर, ही लिव्स ऑन आवर विलेज. वेल, इट इज ट्रू दैट द लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड्स थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप. कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ. उन्होंने कहा, क्या तुम इसको जानते हो, इस आदमी को, इस भले आदमी को? हेडमास्टर ने कहा, यस. उन्होंने, तपन ने बोला, यस मैं जानता हूँ, ये हमारे विलेज में रहते हैं. और लास्ट इवनिंग उन्होंने कहा कि क्या तुमने इन पे स्टोन थ्रो किए थे इनकी शॉप पे, मुझे सच बताओ. ही सेड, यस सर, इट इज ट्रू, आई थ्रो स्टोन्स एट हिज शॉप विद रतन एंड अदर्स. मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ स्टोन थ्रो किए थे. व्हाई डिड यू डू दैट? आंसर मी, द हेडमास्टर थंडर्ड. उसने एक धमकी भरी आवाज देते हुए धमकी में कहा कि मुझे बताओ क्यों थ्रो किए थे तुमने. व्हाई? सर, दिस मैन चीट्स, ही चार्जेस हाई प्राइसेस एंड गिव लेस. ये प्राइस ज्यादा लेता है और सामान कम देता है. मोरओवर, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू काइंड ऑफ पेपर बैग विच इज पैडेड एट द बॉटम. इसने एक नया पेपर बैग इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में और उसमें क्या है, नीचे पैड लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है, वो हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है. The day before yesterday we bought a kilo of dal from him. एक दिन पहले हमने, कल से एक दिन पहले हम 1 किलो दाल लाए थे इससे. When we weighed the contents at home, जब हमने उसे weigh किया, घर पे मेजरमेंट किया, it turned out to be only 800 grams. It should be 1000 grams, but it was 800 grams. The padding in the bag weighed 50 grams. जो padded था, नीचे पैड था, उसका वेट ही अपने आप में 50 grams था. He had short weighted 150 grams. इसने 150 ग्राम शॉर्ट वेट किया है, देखा जाए तो. It is common knowledge in the village. सबको पता है ये बात विलेज में कि ये हमेशा he charge the higher prices and give the less quantity. When I questioned him about it yesterday, he chased me out his shop. That's why I and other boys threw stones in. When I questioned about him, मतलब जब कल मैंने क्वेश्चन किया तो इन्होंने मुझे चेज किया, पकड़ा और बाहर निकालने की कोशिश करी. Then I and my friends throw the stones on him, on his shop. Basically, the headmaster looked at the shopkeeper. His face was crimson. हेडमास्टर ने उसको देखा, शॉपकीपर को, और उसका फेस कैसा हो चुका था, एकदम रेड, ब्राइट रेड. ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था. द हेडमास्टर थॉट फॉर सम टाइम, देन टर्निंग इनटू तपन ही सेड, इवन सो व्हाट यू डिड यू नॉट राइट, इट इज रॉन्ग. उसने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि ही शॉपकीपर वाज रॉन्ग, but you are also wrong. You are also wrong. You did the wrong thing. You should not do it. The headmaster thought for some time, then turning to Tapan, he said, even so, what you did was not right. It is wrong to harm the property of others. किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना गलत है. If the shopkeeper is dishonest, it is for the government or the village panchayat to take up the matter. अगर शॉपकीपर गलत है और वो चीटिंग करता है तो ये काम किसका है, ये या तो पंचायत का है या फिर गवर्नमेंट का है, या विलेज पंचायत का है, गांव की पंचायत का, या गवर्नमेंट का है, वो उसको देखेंगे. इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस नहीं है. होल्ड आउट योर हैंड, अपना हाथ मत डालो हर चीज में. तपन वॉज टोल्ड टू स्टैंड आउटसाइड द हेडमास्टर ऑफिस व्हेन ही रिटर्न हिज क्लास एट द एंड ऑफ द स्कूल. हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम साइडवेज एंड स्निगर्ड. तपन बाहर खड़ा रहा, किसके ऑफिस के, हेडमास्टर के ऑफिस के. और जब वो बाहर निकल कर आया, अपनी क्लास में जाने लगा, तो सारे बच्चे उसे ऐसे साइड से देख रहे थे और उस पे हंस रहे थे. ठीक है, मतलब एक बहुत गंदी तरह से वो उस पे हंस रहे थे. देयर वॉज अनदर इंसिडेंट फ्यू डेज लेटर. कुछ दिन बाद फिर एक और इंसिडेंट हुआ. इट कंसर्न द फियर्स ऑक्स. एक ऑक्स था विच वॉज मेंसिंग द लोकेलिटी, जो
लोकेलिटी में सबको परेशान करता रहता था, उसने बहुत सारे पीपल को इंजर्ड कर दिया था। अगर कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश करता था तो वो उस पे और हमला कर देता था। सब उससे डरते थे, एवरीवन वाज टेरिफाइड, बहुत डरते थे। द एफोनिटी ऑफ द एनिमल अराउज तपन्स स्पिरिट, वेट यू बिग बुली। फिर उस तपन ने उसको एनिमल को देखा और कहा कि चलो मैं देखता हूँ इसे। आई विल टेम यू, ही ममल्ड। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक ही बॉट अ स्टैव एंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्लोली अप्रोच द फॉक्स। उसने उसके लिए एक टुकड़ा लाया खाने का और उसे अपनी तरफ अप्रोच किया, बुलाया। वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी जम्प्ड ऑनटू इट बैक एंड पुट द स्ट्रिंग ऑन हिज माउथ एंड बिल्डिंग द हॉर्स। एकदम से वो उस पे चढ़ के बैठ गया, ठीक है, उसने मौका देखा, उसको खिलाने के लिए कुछ बुलाया और उस पे चढ़ के बैठ गया। The ox was taken by surprise, but the moment felt the way on its back, it started stamping and buckling. बड़ा शॉक्ड हो गया ऑक्स कि कौन आया है मेरे बैक पे। उसने जब वेट महसूस किया तो वो अपने पैरों को ऐसे ऐसे स्टैम्प करने लगा, स्टैम्पिंग हिज फीट, और अपना जो वेट था ऊपर जो आ रहा था उसको वो हटाने की कोशिश करने लगा, ठीक है। इट ब्रोक इनटू अ गैलप होपिंग टू थ्रो द tormentor of his back. Meanwhile, the school break was over and a class had resumed, but Tapan was busy in taming the fox. क्लास ओवर हो गई थी पर तपन किस में बिजी था? तपन बिजी था कि वो उसको कंट्रोल करना चाहता था, ऑक्स को, जो सबको बहुत परेशान करता था ऑक्स। He managed to keep himself on the back of the tossing, buckling bronco. Holding the string firmly, he patted the ox back. ठीक है, उसने ऐसे ऐसे पैट किया। That further enlarged the animal. उसने एनिमल को फटाफट पकड़ लिया। It crashed into the school compound and then into the room of class 7th. The teacher and the students were petrified and scattered in all directions. सब लोग, वो अंदर लेके चला गया उसको कंपाउंड में कंट्रोल करते करते, मतलब वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और सब लोग भागने लग गए, इधर उधर भागने लग गए, शोविंग एंड पुशिंग देयर वेज ऑफ द क्लासरूम, इधर उधर भागने लग गए बहुत बुरी तरह से। इन द स्टैम्पेड मैनी ऑफ दैम स्टबर्न एंड फेल, बहुत सारे गिर भी गए लोग, ठीक है। द टीचर रजनी सहारा मैनेज टू एस्केप अनहर्ड बाय रनिंग आउटसाइड। बड़ी मुश्किल से वो जो थी रजनी सहारिया थी वो बचकर आई। सेवरल ग्लास पेन्स वर ब्रोकन बाय द हॉर्न्स ऑफ द वाइल्डली प्रेंसिंग एनिमल। सब लोग बहुत बुरी तरह से इधर उधर, ग्लासेस जो थे वो टूट गए थे, मतलब जो स्कूल के ग्लासेस थे। फाइनली द डेज्ड ऑक्स रैन बिलोंगिंग डिस्पिटली इनटू द स्कूल फील्ड एंड फेल ऑन इट्स साइड। फाइनली वो गिर गया। अ फ्यू सेकेंड लेटर इट्स जम्प्ड अप एंड रैन फॉर इट्स लाइफ। फिर कुछ टाइम बाद ही वो खड़ा हुआ और अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग लिया। सो देयर वॉज अनदर कंप्लेंट लॉज्ड अगेंस्ट तपन। अब इस टाइम किसने कंप्लेंट करी थी? राजानी सहारिया ने, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बची थी उससे, ऑक्स से। द हेडमास्टर फ्लू इनटू अ रेग। हेडमास्टर गुस्से में लाल पीला होके गया और बॉय जो था उसको बुलाया, जो ट्रबल मेकर था, जो हमेशा सबको परेशान करता रहता था, मिनिस था जो। द हेडमास्टर समन तपन अगेन, फिर से उसे बुलाया। तपन अपीयर्ड विद मोहन द चौकीदार, वो चौकीदार के साथ आया, और जो हेडमास्टर था वो बॉयल हो रहा था, मतलब उसका जो टेम्पर था वो हाई हो चुका था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में लाल पीला हो रहा था। यू आर अ विक्ड बॉय, तुम बहुत विक्ड बॉय हो, बहुत परेशान करते हो, बहुत नॉटी हो। Why did you lead the ox into the classroom? क्यों तुमने उसको पकड़ा और क्यों उसे क्लास में ले लेके जा रहे थे? Speak up. The headmaster demanded, brandishing his cane. उसने उससे डिमांड किया, जल्दी बताइए। Tapan replied, head lowered, Sir, I didn't lead the ox into the classroom. I was only riding on his back to tame it and it suddenly ran into the room. मैं उसे क्लासरूम में लेके नहीं गया सर, मैं एक्चुअली उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो सबको बहुत हर्ट करता है, और जब मैं उसे कंट्रोल कर रहा था तो वो ऑटोमेटिकली क्लासरूम के बाहर वहां पर पहुंच गया। Who asked you to ride an ox during the school hours? किसने कहा था तुम्हें स्कूल आवर्स में उस पर चढ़ के घूमने के लिए? Again Tapan was punished. His classmate again sniggered and ridiculed him. He was branded as a bad boy of the school. उसको क्या नाम दे दिया गया? बैड बॉय, नालायक बच्चा है स्कूल का, ऐसा उसे नाम दे दिया गया, और उसको दोबारा से पकड़ा गया और उसको पनिश किया गया। Soon afterwards a notice was circulated in the school.
फिर उसके बाद एक नोटिस निकला स्कूल में, इट रीड तपन ऑफ क्लास 5th हैज बीन पनिश्ड फॉर राइडिंग एन ऑक्स इनटू क्लास 7th and upsetting the teacher and students, also causing breakage of class pens. It has been further fined rupees 25 to pay for the damage. The notice concluded that Tapan would be expelled from the school if he committed any such offense in future. अब उसके अगेंस्ट क्या निकला है, एक नोटिस निकला है. क्या नोटिस निकला है कि अब तपन ने फिर से मिस्टेक करी है, और अगर इसके बाद अब तपन ने मिस्टेक करी तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है, उसने परेशान किया है, ऑक्स को वो लेकर गया 7th क्लास में, टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों को उसने परेशान किया है, डैमेज किया है, स्कूल का ग्लास ब्रेक हुए हैं. अब उसे उसके लिए फाइन देना पड़ेगा ₹25, और अगर उसने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा. ठीक है, उसको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा. ऑन द सेम इवनिंग द हेडमास्टर हैड रिटर्न होम, हैड हिज टी वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर से आ रहा था हेडमास्टर शाम को और अपनी चाय पीता हुआ, ये उसका डेली रूटीन था, वो वॉक करता था, चाय पीता था. डस्क वॉज फॉलिंग एज ही वॉज ऑन दिस बैक व्हेन ही सॉ द स्कूल्स बैड बॉय. फिर उसने क्या देखा रास्ते में, स्कूल का बैड बॉय जिसको नाम दे दिया गया था. तपन वॉज होल्डिंग एन ओल्डर बेगर वुमेन हैंड. उसने एक जो बैगर थी वुमेन जो वहां पर भीख मांग रही थी उसका हाथ पकड़ा, ओल्ड वुमेन का. वाइल ऑन इट्स हैड ही कैरिड हिज बैगिंग बास्केट, और उसकी जो बैगिंग बास्केट थी भीख मांगने वाली उसको भी पकड़ा. वॉकिंग अलॉन्ग साइड जेरिंग एट हिम वर 2 बॉयज ऑफ हिज क्लास, नरेन एंड वन हु केम फर्स्ट एंड महेश. द ओल्ड वुमेन हैड फीवर. और उस लेडी को उन्होंने हर्ट किया था, किसने, नरेन एंड महेश, जो उसी की क्लास में पढ़ते थे, जो फर्स्ट आया था उनमें से एक. ओल्ड वुमेन जो था उसको फीवर था. इट हैड कम ऑन हर ड्यूरिंग हर बैगिंग राउंड. वो अपने बैगिंग कर रही थी जैसे वो डेली करती थी. शी कुड हार्डली वॉक, वो चल भी नहीं पा रही थी. लीव अलोन कैरी हर बास्केट, उसने अपनी बास्केट भी छोड़ दी. ऑन सीइंग द प्लाइट ऑफ द ओल्ड वुमेन तपन हैड लिफ्टेड हर बास्केट. उसने देखा उसको तड़पता हुआ और उसने उसकी बास्केट पकड़ी और उसको लेकर वो इधर, मतलब उसको हाथ पकड़ के उसको जाने लगा. ग्रैनी होल्ड ऑन टू मी, आई विल वॉक यू होम. उसने कहा, ग्रैंडमा मतलब अम्मा, दादी, व्हाटएवर he denoted, I will walk you home, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ. When Naren and Mahesh saw the headmaster, they saluted him. नरेन और महेश ने उसे देखा और सैल्यूट किया. And looked at Tapan with a derisive smile, और उन्होंने तपन को एक उपहास का पात्र वाली स्माइल करते उसको देखा. And pleased that the headmaster was himself witnessing one of the Tapan's misdeeds, और जिसमें कि जो हेडमास्टर था वो उसकी मिसडीड्स पहले देख चुका था तपन की, और उसको एज अ बैड बॉय घोषित करा जा चुका था स्कूल का. When the headmaster questioned the old woman, she told him how Tapan had come forward to help her. Her voice was trembling. जब हेडमास्टर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा तब उसे पता चला कि उसने तपन ने उसकी हेल्प करी थी इनफैक्ट, और उसकी जो आवाज थी वो बहुत कपकपा रही थी. She pointed to Tapan and said, उसने पॉइंट आउट किया तपन को, ये देखिए, हैड दिस डियर बॉय नॉट बैड, ये बहुत अच्छा बच्चा है और इसने मेरी हेल्प करी है. नॉट बीन देयर, अगर ये यहाँ नहीं होता तो मैं सड़क पर पड़ी होती, मैं गिर जाती. आई हैव बीन स्टिल बीन लाइंग ऑन द रोड, अभी भी मैं सड़क पर पड़ी होती. मे गॉड शॉवर हिम, भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करे और उसको बहुत सारी दुआएं देती हूँ मैं, ब्लेसिंग्स. द अदर 2 बॉयज देयर ऑल्सो सो हाउ इल आई वॉज बट फार फ्रॉम लेंडिंग हा हैंड. और भी 2 लड़कों ने देखा था कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी बीमार हूँ, पर उन्होंने हाथ तो दिया ही नहीं. दे हैव बीन मेकिंग फन ऑफ दिस डियर बॉय, बल्कि वो इसका मजाक और उड़ा रहे थे. हाउ हार्टलेस दे आर, कितने निर्दयी हैं वो दोनों बच्चे जिनके सीने में दिल ही नहीं है. द ओल्ड वुमेन बिगिन पेंटिंग फॉर ब्रेथ, उसको एक ऐसे जोर जोर की सांस आने लगी. द हेडमास्टर स्कोल्डेड नरेन एंड महेश एंड सेंड देम अवे, फिर उसने नरेन और महेश को डांटा और वहां से भेज दिया. ही आस्क्ड तपन टू टेक द ओल्ड वुमन टू हर होम, उसने तपन को कहा कि इसे अपने घर छोड़ दो.
2 weeks later the headmaster was returning home from his walk. Again 2 हफ्ते बाद क्या देखा हेडमास्टर ने, वो जैसे कि वॉक से घर जाते थे, वॉक करते हुए वो अपनी वॉक करके घर जा रहे थे. ऑन द रोड ही सॉ द ऑक्स लाइंग विद द लेग ब्रोकन एंड नीलिंग बिसाइड इट वाज तपन. उन्होंने देखा कि जो ऑक्स था वही वाला ऑक्स जिसको तपन ने राइड करा था और जो सब लोगों को परेशान करता था, वो उसकी टांग टूटी हुई थी और वो सड़क पर पड़ा था. रबिंग सम मेडिसिन ऑन इट्स इंजर्ड लेग एंड बैंडेजिंग हिम. और तपन क्या कर रहा था, तपन उसको क्या कर रहा था, मेडिसिन लगा रहा था, उसको बैंडेजिंग कर रहा था. ठीक है. देयर वॉज टीयर्स इन तपन आईज, और तपन की आंखों में आंसू थे. ही वॉज स्टार्टर्ड व्हेन द हेडमास्टर केम एंड स्टूड नियर हिम. जैसे ही हेडमास्टर आए वो खड़ा हो गया एकदम, उनको देख के सल्यूट करने लगा अपने फोल्डेड हैंड्स के साथ. What are you doing here, तपन? उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो तपन? सर some wicked boys have broken the ox leg. कुछ लड़कों ने जो बदतमीज हैं उन्होंने इसकी जो लेग है उसको हर्ट किया है, इंजर्ड किया है. इट इज इन ग्रेट पेन, ये बहुत दर्द में है. सर इट इज नॉट रॉन्ग टू हर्ट डम्प्स एनिमल, ऐसे बेजुबान एनिमल्स को. ठीक है. डम्प एनिमल्स मीन्स जिनको जो बोल भी नहीं सकते, उनको हर्ट करना बहुत गलत है. तपन आज सैडली, डिडंट यू राइट दिस सेम फॉक्स ऑन द अदर डे सेइंग दैट इट वाज विक्ड एंड नीडेड टू बी ट्रिम्ड. क्या तपन एक बात बताओ, तुम उस दिन इस ऑक्स को घुमा नहीं रहे थे स्कूल में और ये कह रहे थे कि ये बहुत परेशान करता है सबको और इसको सबक सिखाना चाहिए. हाउ हैज इट बिकम सो गुड इन योर आईज टुडे? आज ये इतना अच्छा कैसे बन गया तुम्हारी आईज में? ये तो बात है पूछने वाली. देखो वो उसको इंजर्ड को बैंडेज कर रहा है और उसको मेडिसिन लगा रहा है. वेल सर इट वॉज वेरी विक्ड. सर ये बहुत शरारती है, परेशान वो करता है, सबको परेशान करता है. बट सिंस द डे आई रोड इट इट हैज रिफॉर्म्ड. जिस दिन से मैंने इस पे राइड करी है ये बिल्कुल चेंज हो गया है. अब ये लोगों को अटैक नहीं करता बट इवन मेक्स वे फॉर देम, बल्कि उनके लिए रास्ता बनाता है. सो दे शुड नॉट हैव हर्ट इट. अब किसी को भी इसे हर्ट करने का कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है. दिस एग्नॉय, अब ये चेंज हो चुका है. आई हैव क्रस्ड अ फ्यू मेडिकल लीव्स एंड ड्रेस द इंजर्ड लेग. मैंने कुछ मेडिसिनल लीव्स ली हैं, पत्तियां ली हैं और इसको ड्रेसिंग करने की कोशिश करी है उसके पल्प से. ठीक है. आई हैव हर्ड फादर से दैट इट इज वेरी गुड फॉर इंजरीज. मैंने अपने पापा को कहते हुए सुना था ये बहुत अच्छे हैं इंजरीज के लिए. तपन सेज हिज हार्ट ऑफ फुल ऑफ सिंपैथी फॉर द ऑक्स एंड हिज आईज ब्रिमिंग विद टीयर्स. उसने जब ये बता रहा था वो हेडमास्टर को, तो उसकी आईज में, आंखों में आंसू थे और उसे बहुत सिंपैथी हो रही थी ऑक्स से. द हेडमास्टर स्टूड एनग्रॉस्ड इन थॉट. हेडमास्टर एक गहरी सोच में डूब गया. देन ही लुक्ड एट तपन्स फेस एंड अफेक्शनेटली पैटेड हिम. और उसने बहुत प्यार से उसे पैट किया, मतलब उसके पीठ थपथपाई ऐसे करके. विदाउट अ वर्ड ही स्टार्टेड ऑन हिज वे होम. बिना कुछ कहे वो अपने घर चला गया. हिज आईज वाज मॉइस्ट. और जो हेडमास्टर था उसकी जो आंखें थी वो भी नम हो गई थी, मतलब उसको भी आंसू आने वाले थे इतनी अच्छी बात सुन के तपन की. इट वॉज अ प्राइज गिविंग डे ऑफ द जननपीठ हाई स्कूल. आज क्या था? आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जननपीठ में. द प्रिंसिपल ऑफ गुवाहाटी कॉलेज हैड बीन इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन. और उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था. गुवाहाटी के कॉलेज के कोई प्रिंसिपल थे. दिस टाइम द हेडमास्टर रेबिन बोरा हैज डिसाइडेड टू अवार्ड अ स्पेशल प्राइज टू द स्टूडेंट विद द बेस्ट कैरेक्टर. और जो हेडमास्टर थे वो क्या देना चाहते थे? वो उस स्टूडेंट को बेस्ट प्राइज देंगे जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा होगा. और उसमें उसे क्या मिलेगा प्राइज में? बायोग्राफी. किसकी बायोग्राफी मिलेगी? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की और लाल बहादुर शास्त्री की. ठीक है. बुक्स बायोग्राफी मतलब, तो बड़ा अच्छा सा प्राइज है ये. द फंक्शन स्टार्टेड आफ्टर द वेलकम ऑफ द प्रेसिडेंट. फंक्शन स्टार्ट हुआ जैसे ही प्रेसिडेंट का हमने वेलकम किया. द सेक्रेटरी रिपोर्ट्स वॉज रीड. दिस वॉज फॉलोड बाय अ प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. बहुत सारे गाने, डांसेस और रेसिटेशंस, पोम रेसिटेशंस हुआ. देन द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड हिज स्पीच एंड फ्यू अदर्स स्पोक. प्रेसिडेंट ने भी अपनी स्पीच डिलीवर करी ऑन द स्टेज और बाकी लोगों ने भी अपनी स्पीचेस दी. नेक्स्ट केम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज. अब किसका बारी आई? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की. द अवार्ड इज क्लोड विद प्लेजर एंड प्राइड.
बड़े ही अच्छे से उस प्राइज को घोषित किया गया. देन केम द टाइम फॉर अनाउंसमेंट ऑफ द स्पेशल प्राइज. अब अनाउंसमेंट की बारी आई. एवरीवन वेटेड एक्सपेक्टेंटली. बड़े कीनता से, बड़े अच्छे से सब लोग वेट कर रहे थे. एड्रेसिंग द असेंबली द हेडमास्टर अनाउंस. हेडमास्टर ने अनाउंस किया. क्या अनाउंस किया? ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड रेस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट हैज बीन डिसाइडेड टू गिव द स्पेशल प्राइज ऑफ द स्टूडेंट विद द बेस्ट कैरेक्टर टू तपन हजारिका ऑफ क्लास 5th. क्लास 5th के तपन हजारिका को अवार्ड किया जाएगा. द टीचर एंड स्टूडेंट्स वर डम्बफाउंडेड. बड़े शॉक थे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स. तपन कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स. तपन को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था. ही कुड नॉट मस्टर द करेज टू गेट गो टू रिसीव द प्राइज. उसने इतना साहस नहीं था कि वो ये बात सुन के प्राइज लेने चला जाए. अगेन द हेडमास्टर रिपीटेड, तपन कुमार हजारिका क्लास 5th, his head reeled. Could it be true that he, known as a bad boy of the school, was being called to receive the best character prize? मतलब सब लोग शॉक थे कि जिसको बैड बॉय घोषित कर दिया गया था उसको प्राइज देने के लिए बुलाया जा रहा था. बड़े शॉक्ड की बात थी. बट ये सही था, ये ट्रुथ था, क्योंकि हेडमास्टर उसकी ऑनेस्टी को देख चुके थे. Was being called to receive the best prize. Tapan stood up and went for the president, did namaskar and received the prize. तपन गया स्टेज पे और उसने प्रेसिडेंट को नमस्कार किया. The headmaster then narrated how Tapan had helped the old beggar. फिर हेडमास्टर ने एक्सप्लेन किया सबके सामने कि how old beggar woman, एक ओल्ड बेगर वुमेन को तपन ने हेल्प किया था और नर्सिंग करी थी. मतलब किसकी? इंजर्ड फॉक्स को कैसे उसने फर्स्ट एड दी थी. ही ऑल्सो गेव तपन 5 रुपीज फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. उसने तपन को अपने जेब से निकाल के एक कैश प्राइज भी दिया. द हॉल रिसाउंडेड विद अप्लॉज. पूरे हॉल में क्या हो रही थी? तालियों की गूंज खत्म ही नहीं हो रही थी. तपन आईज क्लिंस्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय. और तपन की आंखों में क्या थे? एक खुशी के आंसू. तो दिस वॉज द तपन्स स्टोरी. जैसे कि उसको बैड बॉय समझा जा रहा था, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कभी कभी लोगों को मिसअंडरस्टूड करते हैं, हम कभी कभी गलत समझ लेते हैं जबकि वो उतने गलत होते नहीं. क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स हमारी आंखों देखी बातें भी गलत हो सकती हैं, रॉन्ग हो सकती हैं. हम जो देख रहे हैं जरूरी नहीं हो वो सच हो. ठीक है, कई बार हम जो सुनते हैं वो जरूरी नहीं है सच हो. तो किसी भी बात को जानने के लिए हमें उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है. वी शुड गो इनटू द डीप टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पर्सन. वी शुड नॉट बिलीव द what we hear from the others people and what we see. Okay, so we should be inquired. We should inquired about the someone people, and then we have to see that he is wrong or he is right. Okay, so the story finished. Story was very nice. Okay, guys, we will see you in the next class with a poem of unit 1. Okay, bye bye. Okay, today we will start the unit 1 chapter 2, a poem, class 7th English reader. Okay, we will start with the rhyme, which title is exactly right. Exactly right means वाकई में सही क्या है, क्या जो बात पोम में कही जा रही है क्या वो ठीक है, क्या वो बिल्कुल करेक्ट है. लेट्स सी. रीड द पोम अबाउट अ गर्ल हु कंफ्यूज्ड अबाउट इज इज टू ओल्ड और टू यंग. ये किसके बारे में है? ये पोम एक गर्ल के बारे में है जो बड़ी कंफ्यूज है. कैसे कंफ्यूज है? वो ये जानना चाहती है कि क्या वो बहुत बड़ी हो चुकी है या क्या वो बहुत छोटी है. वो ये जानना चाहती है. शी इज लुकिंग कंफ्यूज. देखो उसके फेस पे एक कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है. दे से दैट आई एम टू यंग. दे डिनोट टू पीपल. देखो हमारे आसपास लोग होते हैं बहुत सारे, है ना. हम क्या कहते हैं? हम हमेशा ये नहीं बात करते कि यार ऐसे करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, लोग ऐसे कहेंगे, लोग वैसे कहेंगे. कौन? दे आर डिनोटेड विद, मतलब दिस हेयर इन द पोम दिस इज डिनोटेड विद दे. हम भी तो लोगों के बारे में केयर करते हैं ना, जबकि
हमें इतनी केयर नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं. They did nothing for us. They only speaks. They only buttering. They only open their mouth with the bad things for us. They do nothing. They will give nothing. They will never do nothing. They will don't give a penny to us for our life sake. Okay. So here in the poem, she is saying, they say that I am too young to cross the street to play. वो कहती है कि मैं बहुत क्या हूं, मैं बहुत छोटी हूं, मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकती हूँ, और मैं स्ट्रीट में प्ले भी नहीं कर सकती. स्ट्रीट मीन्स जो हमारी गलियां होती हैं जहां पर बच्चे खेलते हैं पूरा दिन, वो गलियों में मैं खेल नहीं सकती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, तो मुझे डर है और मुझे घर में रहना चाहिए. आई शुड नॉट प्ले इन द स्ट्रीट विद द अदर बॉयज एंड द गर्ल्स. और फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, दैट आई एम टू ओल्ड टू क्राई व्हेन आई डोंट गेट माई वे. अरे मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, पहले ही पल में कोई मुझे कह रहा है मैं बहुत छोटी हूँ, और दूसरी ही बात में कोई मुझे कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ. किस लिए बड़ी हो चुकी हूँ? जब मुझे मेरी चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलती, व्हाट आई एम वांट टू हैव एट एंड आई डोंट गेट इट, तो वहां मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ. ये क्या बात है भाई? कभी तो मैं बहुत छोटी हूँ जब मैं गली में खेल रही हूँ, तो और जब मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ. लोग कहते हैं, सब कहते हैं दैट आई एम मच टू बिग टू स्विंग ऑन अ गार्डन गेट बट वेरी मच टू स्मॉल टू स्टेप आफ्टर 8. अरे ये क्या बात है भाई? दैट आई एम टू मच बिग, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, टू स्विंग ऑन अ गार्डन गेट, मैं गार्डन के गेट पे झूलने के लिए बहुत बड़ी हूँ, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए. दे पीपल सेड. बट वेरी मच टू स्मॉल, बट मैं बहुत छोटी हूँ, टू स्टे अप आफ्टर 8, मतलब 8 बजे के बाद मुझे सो जाना चाहिए, मुझे जागना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ और मुझे टाइम से सोना चाहिए. आई एम यंग, आई एम ओल्ड, आई एम बिग, आई एम स्मॉल. भाई क्या हूं मैं? यंग हूं, ओल्ड हूं, बिग हूं, स्मॉल हूं. डू यू थिंक इन एज एंड हाइट आई विल एवर ग्रो टू बी जस्ट एग्जैक्टली राइट? क्या आपको लगता है कि मैं कभी ग्रो कर पाऊंगी, मैं बड़ी हो पाऊंगी? एक्चुअल में मैं क्या कभी बड़ी हो पाऊंगी एग्जैक्टली? हाँ, या फिर सिर्फ बातों में कहने के लिए मैं बड़ी और छोटी रहूंगी? क्या मैं एग्जैक्टली कभी बड़ी हो पाऊंगी? क्यों? क्योंकि somebody said this और somebody said that. कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है. देखो ये सब आपके साथ भी होता होगा. You are also children and this happens actually at your home and in your society, in your colonies, in your streets. हर जगह ये होता होगा, है ना? और घर में स्पेशली your grandparents and your parents used to say like this that बेटा आप बहुत छोटे हो अभी, आप ऐसे बाहर गली में नहीं खेलो अकेले, साइकिलिंग मत करो. और फिर एक ही पल में दूसरे पल में क्या कहते हैं, अरे आप क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो, आप बड़े हो गए हो, अब आपको ये चीज नहीं चाहिए, आपको ये नहीं मिल सकता है, अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, अब आपको इसकी कोई नीड नहीं है, आपको इन टॉयज से खेलने की कोई नीड नहीं है, अब आप बिग हो चुके हो. फिर एक ही पल में वो आपसे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जल्दी सो जाना चाहिए, ठीक है, आप बहुत छोटे से बच्चे हो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर सुबह उठने के लिए वो कहते हैं, अरे वेकअप अर्ली, जल्दी से उठ जाओ, आप बहुत बिग हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग बच्चे हो, और आपको टाइम से उठना चाहिए और सारे अपने रूटीन्स वर्क्स, अपने चायोस, अपने सारे काम, डेली रूटीन के वर्क प्रॉपरली करने चाहिए. तो दिस हैपन्स. जो गर्ल जहां कंफ्यूज है वहां आप लोग भी कंफ्यूज हैं. क्यों? क्योंकि आपको भी ऐसे ही डिनोट किया जाता है जैसे उस गर्ल को डिनोट किया जा रहा है इन द पोम. So the poem was about a girl. It was written by, it was लॉरा आर्लन. एंड ये जो पोम है ये एक गर्ल के बारे में थी जिसको लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं. तो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्यूट पोम about a girl and she was very confused that she is too old or too young. ये कुछ भी नहीं है too old young, ये नॉर्मल लोग कहते रहते हैं, इट्स नॉर्मल. हम एज के साथ बड़े तो हो ही रहे हैं और हमारी जो मेंटल स्टेट है वो हमारी एज के साथ ग्रो हो जाती है. हम पहले बहुत छोटे टॉयज से खेलते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि हम इस टॉयज के लायक नहीं है, अब हम बड़े हो चुके हैं, तो वो हमें खुद ही फील होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता.
ठीक है. ओके, वी एंड विद द पोम. दिस वाज वेरी शॉर्ट पोम. ओके, चलिए अब वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the next chapter with the next unit. Okay guys, bye bye, have a nice day, have a great day.